Students, very good morning. We are discussing determinants topic of class 12. Of course, it is NCERT exercise 4.2 question number 5th. Here we have to prove that b plus c, q plus r, y plus z, c plus a, r plus p, z plus x, a plus b, p plus q, x plus y is equal to 2, and in determinant in first row apx, in second row bqy, and in third row crz. And before starting the question, please, it is my request to you that please watch it till last, like it, subscribe it, and share it as much as possible. See, first of all, we have to consider LHS. It is b plus c, q plus r, y plus z, c plus a, r plus p, and z plus x. Now, a plus b, p plus q, and x plus y. This is our LHS. So first of all, we have to apply one property R1. In R1 we are applying R1 plus R2 plus R3. Then what will happen? See, this will become 2 into a plus b plus c. Why is it so? A plus a 2a, b plus b 2b, and c plus c 2c. Because we are adding R1 plus R2 plus R3 in this manner. Here it is p plus p 2p, q plus q 2q, and r plus r 2r. So 2 will be taken common, p plus q plus r. And here it is x plus x 2x, y plus y 2y, and z plus z 2z. So we can take 2 common here also, x plus y plus z. Now here it is c plus a, it is r plus p, and this one is z plus x. It is a plus b, this one is p plus q, and this one is x plus y. Now what we can do? We can take 2 common from first row. So 2 is taken common. The remaining part is a plus b plus c, p plus q plus r, and x plus y plus z is third element of first row. Now c plus a, r plus p, z plus x, and in third row a plus b, p plus q, and x plus y. Then in R2 we are applying R2 minus R1, and in R3 we are applying R3 minus R1. Then what will happen? See, it is 2. This one is a plus b plus c. In row 1 we are not applying any property, तो रो 1 आपकी एज इट इज रहेगी. प्रॉपर्टी जो भी लगी है वो R2 और R3 में लगी है. इसके बाद में p प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज लिखेंगे, और x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज लिखेंगे. अगर हम R2 माइनस R1 लगाते हैं, मतलब c से c और a से a कट जाता है, बचा माइनस b, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस b बचेगा. ऐसे ही यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस q बचेगा, और यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बचेगा. इसी टाइप से अगर R3 में R3 माइनस R1 करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस c बचेगा. ऐसे ही यहाँ p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, माइनस r, क्योंकि R3 में भी अपन R3 माइनस R1 लगा रहे हैं. यहाँ x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो इसमें से इसको माइनस करा तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा z माइनस का, क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं अपन इसमें से, तो यहाँ माइनस z बचा. अब हम लगा रहे हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3. तो जब हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे तो B से B और C से C कैंसिल हो जाएगा, बचा A,
तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी, यहाँ p माइनस क्यू माइनस आर, और यहाँ पर x माइनस वाई और माइनस जेड। अब हम अगर माइनस साइन सेकेंड रो में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, और फिर थर्ड रो में से भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो एक बार और माइनस लगेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो ये 2 यहाँ बचा a p x b q y और साथ में c r z। c दिस इज अवर RHS, दिस वी हैव टू प्रूव। अब ये आपका RHS आ गया और यहाँ पे लास्ट में हैंस प्रूव। Now see next question. It is 8th second question. Prove that in first row 1 1 1 a b c, in third row a cube b cube c cube is equal to, we have to prove a minus b, b minus c, c minus a plus b plus c. So I am taking LHS here. One 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 a b c a cube b cube c cube. We can apply here in R1 minus R2, and in R2 in C1 minus C2, it is in C1 minus C2, and in C2 minus C3. So in C1 we are applying C1 minus C2, and in C2 we are applying C2 minus C3. So this will become 1 minus 1 0, a minus b, a cube minus b cube, then 1 minus 1 0, b minus c, b cube minus c cube, and here it is 1 c cube. Now here a cube minus b cube formula I am applying. It is 0 a minus b, a cube minus b cube formula is a minus b into a square plus ab plus b square. It is the formula for a cube minus b cube in factor form. ये a cube minus b cube का फॉर्मूला है जो फैक्टर के रूप में होता है, a minus b into a square plus ab plus b square. ऐसे ही यहाँ 0 b minus c और इसको b minus c into उसी टाइप से हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। थर्ड रो में 1 c c क्यूब। अब यहां से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है हमको कि a माइनस बी फर्स्ट कॉलम में से और b माइनस सी सेकेंड कॉलम में से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे टर्म्स a माइनस बी और b माइनस सी। तो यहां हो जाएगा 0 0 1 1, यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ 1 c c क्यूब। अब एक और चीज क्लियर हो रही है, यहाँ C1 में C1 माइनस C2 फिर से लगा देंगे ताकि ये 0 हो जाए और यहाँ से भी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो जब हम C1 में C1 माइनस C2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो a माइनस बी बी माइनस सी सी, ये दो टर्म्स तो कॉमन है। यहाँ पर 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा आप, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को साथ में लिख दो, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साथ में लिखा, और ये प्लस ए बी माइनस बी सी साथ में लिखा। जब हम इनको साथ में लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसको a प्लस सी ए माइनस सी लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम a प्लस सी ए माइनस सी लिख सकते हैं।
माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस यहाँ से b कॉमन लेंगे तो a माइनस सी हो जाएगा। अब a माइनस सी दोनों जगह से कॉमन हो गया तो बचा क्या, a प्लस सी प्लस बी, ये बचा। जब हमने a माइनस सी कॉमन ले लिया दोनों जगह से तो a प्लस सी प्लस बी बचा, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी के साथ में a माइनस सी आ रहा है यहाँ, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरा सॉल्यूशन इसका जो आप रफ में करके देख सकते हो। आपने इसमें C1 में C1 माइनस C2 लगाया था। अब यहाँ जो बची टर्म्स हैं 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और लास्ट में 1 सी सी क्यू, ये अब इसमें ये फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी के साथ में c माइनस ए, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो बाहर, तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए अगर आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ माइनस लगा देंगे और a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन ले लो, तो बची हुई टर्म क्या हो जाएगी यहाँ 0 0 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने a माइनस सी को c माइनस ए कॉमन लिया है, तो c माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा और साथ में a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस 1 बचा। यहाँ 0 1, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ 1 सी सी क्यू। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब बची एक ही टर्म है वहां पर 1, बाकी की टर्म 0 हो गई, ये तो 0 हो जाएगी, ये 0 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0 और 0 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 0 हो जाएगा। तो केवल बचा है 1, तो 1 ले रहे हैं अगर तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगी, तो बचा क्या 0 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 0 1 माइनस 1 है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि इसको हम आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और साथ में a प्लस बी प्लस सी, इस 1 के साथ में यहाँ 0 माइनस 1 इंटू 1, 0 इंटू समथिंग तो 0 होता है, माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1 आएगा, तो वो माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1 हो गया। तो ये 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और साथ में a प्लस बी प्लस सी। देखिए आप RHS यही प्रूव करना था हमको, तो इज इक्वल टू RHS hence proved. Thanks for watching our channel up to the last, and please like it, share it and subscribe it as much as possible.